Dear student, welcome back to the series of lecture on the topic steam turbine. So, in the previous lecture, we have learned about the impulse principle. Today, let us learn about the velocity diagram. So, I'm going to turn it off our video. So, let us first discuss why why we need to construct a velocity vector diagram. So, uh, when we have learned in the during the analysis of the impulse principle that a velocity of a steam jet impinges on a blade. So while impingement, the transfer of momentum from fluid jet to blade takes place, and because of that, the fluid applied a force on the blade. Because of that, if the blade is stationary, then there will be no any work done by the fluid jet on the blade. However, if the blade moving, blade is moving, then there will be the work done by the fluid jet on the blade. So we need to calculate that work done upon the blade by the fluid jet. And this is work is being done in the direction of motion of the blade. So to evaluate this work on the blade that is being done by the fluid jet in the direction of blade, we need to construct a velocity vector diagram. That's why the velocity vector diagram comes into the picture. So let us see, consider this diagram. In this diagram, this is the blade. This is the blade showing. It is a curved blade. And there is the two triangles shown. This triangle and this triangle. So let us first get familiar with the nomenclature. ये ब्लेड है, ये ब्लेड हो गया, ये वाला पार्ट ब्लेड का इनलेट हुआ, यहां से ब्लेड पे एग्जिट हुआ. ब्लेड का इनलेट किसका, फ्लूइड यहां पे एंटर कर रहा है ब्लेड पे, इस तरीके से यहां से एंटर करके फ्लूइड अलोंग द ब्लेड मूव किया और यहां से एग्जिट हो गया. सो दिस इज द एग्जिट एंड दिस इज इनलेट. सो एंट्रेंस we will denoted as a 1 and exit by 2. So 1 stands for the inlet to the blade, 2 stands for the exit from the blade, exit of the fluid jet. So let's have another nomenclature first. A Vs, what was the Vs? Velocity of steam. This velocity is absolute velocity. There will be the two absolute velocity at the inlet and at the exit. So Vs1 will be denoting the absolute velocity of fluid at the inlet. The same velocity will be nothing but the absolute velocity of fluid that will be coming out of the nozzle. That is coming out the nozzle. Nozzle से जो बाहर निकलेगा उस समय जो absolute velocity होगा, let us say it is denoted by Vs1. Vs2 क्या होगा, absolute velocity of the fluid. कौन सा fluid, जो एक ब्लेड से बाहर निकल रहा है, यानी इनलेट आउटलेट पे. अगेन हमने वेलोसिटी, ब्लेड का एक वेलोसिटी है, एक मोशन है. सपोज इसको वेलोसिटी को किससे डिनोट किया गया, Vb से, वेलोसिटी Vb. सो Vb इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लेड. Vb इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लेड. नाउ वेलोसिटी ऑफ ब्लेड blade has a motion with velocity Vb. There is the steam has velocity Vs1.
now both are the motion. Now at the inlet steam is entering and coming into the contact with the blade. So ये जो enter करेगा ये किस velocity से enter करेगा? That means the relative velocity. किसका? Relative velocity of fluid with respect to blade. So that is denoted by VR1. That is denoted by VR1. मतलब relative velocity at inlet. Similarly, blade और steam का velocity दोनों एक दूसरे के साथ एक exit पे अलग होगा. तो again there will be the some relative velocity at the blade. अब ये जो relative velocity हम लोग देखते हैं, ये VR1 जो देखा जाएगा वो कब माना जाएगा? जब ऑब्जर्वर आप ब्लेड पे राइड कर रहा होता है तब. जो अभी तक हमने वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी निकाले थे वो हम कब निकाले थे? जब ऑब्जर्वर राइड कर रहा हो, ब्लेड पे बैठ करके देख रहा हो, तब कितना वेलोसिटी है उस समय हम लोग VR1 और VR2 लिखेंगे. सो हमारे पास कितना वेलोसिटी मिला? पहला तो VS1 absolute velocity of fluid. It is very important. Please get familiar with this one. These all nomenclature will vary from literature to literature. I have adopted this nomenclature from the power plant technology by वकील. उनका हमने उस लिटरेचर का हम उस बुक्स का हमने nomenclature लिया है. So VS1 हमारे पास absolute velocity of the blade at absolute velocity of fluid, that is at the inlet to the blade or exit of the nozzle. VS2 क्या होगा? Absolute velocity of fluid at the exit of blade. VV क्या है? Blade velocity. VR1 relative velocity at the inlet और relative velocity at the outlet is VR2. हमारे पास इतना velocity हो गया. एक हमारे पास जो आपने भी पिछले हमने डिस्कस किया था, नोजल एंगल मींस व्हाट? द एक्सिस ऑफ नोजल दैट इज मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. मतलब इस डायरेक्शन से जो एक्सिस ऑफ नोजल एंगल बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो भी एंगल क्या बुलाएगा? नोजल एंगल. नोजल एंगल. अब वो कौन सा वेलोसिटी इसके साथ बनाएगा? जो नोजल से बाहर आ रहा है. नोजल से बाहर कौन सा आ रहा है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड. तो जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल, दैट विल बी द थीटा. दैट विल बी द थीटा. सो दिस इज द नोजल एंगल. दिस इज द नोजल एंगल. दिस इज द नोजल एंगल. नाउ देयर इज द रिलेटिव वेलोसिटी. एब्सोल्यूट वेलोसिटी के पास कुछ वेलोसिटी है, ब्लेड के साथ कुछ वेलोसिटी है. तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी हो गया. रिलेटिव वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ब्लेड एंट्रेंस एंगल. दैट विल बी द ब्लेड एंट्रेंस एंगल. ब्लेड एंट्रेंस एंगल. या फिर हम ये कह सकते हैं जो फ्लूइड जिस एंगल से, जिस एंगल पे फ्लूइड एंटर करेगा ब्लेड पे, उस एंगल को हम लोग ब्लेड एंट्रेंस एंगल करेंगे. इन द सिमिलर फैशन एट द आउटलेट हमारे पास दो एंगल होगा. पहला एक रिलेटिव वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा, दैट विल बी द ब्लेड एग्जिट एंगल गामा. और जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बनाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन से बनाएगा, दैट विल बी द फ्लूइड एग्जिट एंगल. Therefore we have 5 velocity terminology and 4 angle terminology. So with the all nomenclature, let us analyze what is happening. So in this diagram what we are saying, ये जो डायग्राम में है वो एक ब्लेड के साथ में हर एक वेलोसिटी को दिखाया जा रहा है. यानी एक इनलेट पे एक ट्रायंगल मिलके बना रहा है और एक दूसरा ट्रायंगल बना रहा है. इस केसेस को दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ट्रायंगल या वेलोसिटी डायग्राम, जो कि ब्लेड के रिस्पेक्ट में दिखाया जा रहा है. तो ब्लेड के रिस्पेक्ट में जो दिखाया जा रहा है, ब्लेड को भी हम दिखा रहे हैं डायग्राम में, ब्लेड को भी हम दिखा रहे हैं डायग्राम में, दैट इज द वेलोसिटी डायग्राम.
अब हम क्या करते हैं, अगर ये ब्लेड को इरेज कर दें और ये वाला जो पॉइंट है, अगर सपोज हम लोग ब्लेड को इरेज करके ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों हम मैच करा दें, तो उस केसेस में क्या होगा, ये जो ब्लेड है उसको हम लोग इरेज कर दिए फॉर द इजीनेस ऑफ द एनालिसिस, या हम लोग ड्राइंग करने में इजी होने के लिए। तो ये हमें डायग्राम मिल जाएगा, ये हमें डायग्राम मिल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज, या फिर ये हमारा डायग्राम मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड डायग्राम। एक्सटेंडेड डायग्राम जिसमें क्या कर दिया गया, शेप ऑफ द ब्लेड हैज बीन रिमूव्ड, मतलब ब्लेड को हम लोग इसमें शो नहीं कर रहे हैं, हम लोग वेलोसिटी डायग्राम में शो कर रहे हैं, बट एक्सटेंडेड डायग्राम में शो नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं शो कर रहे हैं, ब्लेड को, ब्लेड के शेप को हम लोग शो नहीं कर रहे हैं। सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हम क्यों वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज वेलोसिटी ट्रायंगल एंड हाउ इट हैज बीन ड्रॉन। सो देखा जाए इसमें कि ये ब्लेड है, ये ब्लेड हुआ, ब्लेड का ये वाला पार्ट इनलेट हुआ और ये ब्लेड का आउटलेट पार्ट हुआ। ब्लेड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वीवी। एक पर्टिकुलर एंगल पे नोजल का लोकेशन है, उस लोकेशन के एक्सिस के पैरेलल में एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकल रहा है। अब अगर इसका हम एनालिसिस करते हैं कि ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, मतलब क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल से कितना थीटा डिग्री बनाएगा, तो हम ये जानते हैं कि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वीवी है और ये जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो कुछ आएगा रिलेटिव वेलोसिटी। उसी रिलेटिव वेलोसिटी से ये स्टीम इस ब्लेड पे एंटर करेगा। Therefore, ये अगर एंट्रेंस हो रहा है विदाउट एनी शॉक, मतलब हम चाहते हैं ये स्मूथ एंट्रेंस हो, मतलब ड्यूरिंग एंट्रेंस देयर शुड नॉट बी एनी लॉसेस। टू हैव दिस वन और टू हैपन दिस, जो एंट्रेंस स्टीम का होना चाहिए ब्लेड पे, वो इनलेट पे जो शेप है यहाँ पे, उस जो शेप इनलेट पे है उस पे जो हम ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे, ये जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कब, जो एंट्रेंस पे हमारा कर्वेचर है ब्लेड का, उसी के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी के साथ स्टीम एंटर करना चाहिए, तब स्मूथली एंटर होगा विदाउट एनी लॉसेस। देयरफॉर हमें VR1 हर हाल में फिक्स हो गया, ये इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में होना चाहिए। सपोज ये जो शेप है वो फाई एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है, यानी ये जो फाई हो गया, क्या हो गया, ब्लेड एंट्रेंस एंगल। ये जो रिजल्टेंट ऐसा हमें ये डायरेक्शन फिक्स हो गया कि इस ये जो फाई के साथ ही VR1 एंटर करना चाहिए। देयरफॉर ये वीवी भी फिक्स है कि इसी डायरेक्शन में होगा, मतलब ये हुआ एक वेक्टर, हमारा रिक्वायरमेंट ये है, और ये है एक्चुअली क्या, VR1, वीवी और VS1 का रिजल्टेंट। VR जस्ट मिनट, ये क्या हो गया, हाँ, ये VR1 है क्या, VS1 और VV का रिजल्टेंट, मतलब VV का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फिक्स है, VS1 का मैग्नीट्यूड फिक्स है, तो थीटा ऐसा रखा जाएगा सच दैट कि VV और VS1 का रिजल्टेंट VR1 हो जाए जो इस एंगल पे आए। देयरफॉर ये VV इस डायरेक्शन में हुआ, VS1 इस डायरेक्शन में हुआ, तो ये तीनों का रिजल्टेंट
VR1 यहाँ पे बनेगा। therefore ये जो एक हमें ट्रायंगल मिला है, ये जो एक ट्रायंगल मिला है एट द इनलेट, क्या दिखा रहा है? एक ट्रायंगल VV को दिखा रहा है। VV के रिस्पेक्ट में VS1 थीटा एंगल नोजल एंगल के साथ बना रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट VR1 हो गया, जो ब्लेड एंट्रेंस एंगल पे एंटर कर रहा है। सो दिस ट्रायंगल, दैट इज द ट्रायंगल ऑफ वेलोसिटी एट इनलेट। सो दिस इज कॉल्ड एज velocity triangle at inlet. In the similar cases at the outlet हम लोग एक ट्रायंगल वेलोसिटी बना सकते हैं। वो क्या होगा? जो अब ये जो एंट्रेंस हो रहा है VR1 के साथ हो रहा है रिलेटिव वेलोसिटी से, सपोज ये जब ब्लेड से पास हो रहा है तो ये ब्लेड में कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है। सपोज ये हम स्मूथ ब्लेड मान रहे हैं और ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ द स्टीम थ्रू द ब्लेड हम ये भी मानते हैं कि कोई एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ द स्टीम नहीं होता है। उस केसेस में जितना यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी एंटर किया, हर एक पोजीशन पे उसी रिलेटिव वेलोसिटी से बाहर हो जाएगा। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी अगेन किसके साथ, किस डायरेक्शन में बाहर होगा? सपोज अगर ये VR1 VR2 कुछ रिलेटिव वेलोसिटी से मूव करेगा, अगर स्मूथ है फ्रिक्शनलेस है तो वही रिलेटिव वेलोसिटी से बाहर होगा। अगर नहीं रहेगा तो ये रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी स्टीम इस ब्लेड से बाहर किसके कैसे निकलेगा? ये जो शेप है यहाँ पे एट द एग्जिट टिप, यहाँ पे जो शेप होगा उस पे अगर हम टेंजेंट एक ड्रॉ करते हैं तो इसी टेंजेंट के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी निकलेगा। नाउ हमने वेलोसिटी का डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी का फिक्स कर दिया। अब ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज ब्लेड एग्जिट एंगल। हमारे पास VV है जो इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो इसके टिप पे हमने ले आया, तो ये जो रिजल्टेंट देगा किसका? VR2 और VV का, वो हमारे पास आ जाएगा VS2, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी absolute velocity of fluid leaving the blade. So in this way you have understood how the velocity triangle has been formed at inlet and as well as at outlet. So this was the velocity triangle in which the blade shape is also showing. Now हम क्या कर रहे हैं, इस blade shape को हटा दे रहे हैं और ये दोनों ट्रायंगल को एक यहाँ पे जोड़ दिए, तो ये जो रिजल्टेंट शेप मिला वो क्या मिल गया? दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड वेलोसिटी डायग्राम। एक्सटेंडेड वेलोसिटी डायग्राम। तो ये एक्सटेंडेड वेलोसिटी क्या हो गया? ये VV इस डायरेक्शन में हो गया, VS इस डायरेक्शन में हो गया है, ये हो गया नोजल एंगल, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी इस एंगल में, ये ब्लेड एंट्रेंस एंगल, ये हो गया ब्लेड एग्जिट एंगल, ये हो गया वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी, और ये हो गया VV, दोनों का रिजल्टेंट VR2। अब ये डिपेंड करता है, ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ में ये एंगल बना रहा था दैट इज ब्लेड फ्लूइड एग्जिट एंगल। ये क्या था? फ्लूइड एग्जिट एंगल। तो ये फ्लूइड एग्जिट एंगल डिपेंड करता है VR2 और VV के मैग्नीट्यूड पे। ये डेल्टा हो सकता है, ये डेल्टा लेस देन 90 भी हो सकता है, जैसे इस सेकेंड जो डायग्राम B है उस पे दिखाया जा रहा है, या डायग्राम C में जिसमें कि 90 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये दोनों डायग्राम दिखाया गया है, इसमें विद द पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, जब डेल्टा लेस देन 90 है और इसमें डेल्टा ग्रेटर देन 90 है, इसमें डेल्टा ग्रेटर देन 90 है। तो सेम एक्सटेंडेड डायग्राम है विद these two possibilities. So after drawing the velocity triangle, let us analyze what will be the work done on the blade. तो work done on the blade कैसे होगा? The net force applied by the steam on the blade in the direction of motion of the blade. तो blade का डायरेक्शन मोशन यही है, इस डायरेक्शन में है, VV का इसी डायरेक्शन में VV मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। सो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर इस डायरेक्शन में निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेंगे? हमारे पास दो मेथड है। पहला हम लोग निकालेंगे फ्रॉम इंपल्स मोमेंटम
प्रिंसिपल। वो क्या कहता है कि जो भी फोर्स अप्लाई होगा वो नेट चेंज इन मोमेंटम, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम निकालना चाहते हैं, तो हम इसी डायरेक्शन में निकालना चाह रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में नेट चेंज इन मोमेंटम हम लोग निकाल लेंगे स्टीम का। तो इस डायरेक्शन में अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं, तो सपोज स्टीम का वेलोसिटी vs1 था एट द इनलेट, तो इसका इस इन द डायरेक्शन ऑफ ब्लेड vb के डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट हो जाएगा, vs1 cos थीटा। एग्जिट के डायरेक्शन में, एग्जिट पे देखते हैं vs2 था, इस डायरेक्शन में अगर हम निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, ये अगर डेल्टा है तो vs2 cos डेल्टा। इससे देख लीजिए, अब ये vs2 cos डेल्टा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, ये डिपेंड करेगा डेल्टा एंगल पे। सो इन जनरल इसका कंपोनेंट इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द vb क्या होगा, vs2 cos डेल्टा। तो दोनों के बीच का जो मोमेंटम हो गया, यानी डिफरेंस जो अगर निकाल लेंगे, चेंज इन मोमेंटम, दैट विल गिव इंपल्स। तो इंपल्स फोर्स F इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम एट द इनलेट कितना वेलोसिटी है और एट द आउटलेट कितना वेलोसिटी है। सो इनलेट हमारा कितना था, vs1 cos थीटा एंड vst cos डेल्टा। सो दिस इज द इंपल्स फोर्स, इंपल्स फोर्स, इंपल्स फोर्स। एक और इसका एक टर्मिनोलॉजी दे दिया गया कि स्टीम वेलोसिटी, ये स्टीम वेलोसिटी है, इसका वो कंपोनेंट जो ब्लेड वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, ब्लेड के मोशन के डायरेक्शन में वो स्टीम वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो ब्लेड मोशन के डायरेक्शन में है, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ व्हर्ल, WHIRL। सो ये जो vs1 cos थीटा कहलाएगा, vs1 cos थीटा क्या है, स्टीम वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो ब्लेड मोशन के डायरेक्शन में हमने निकाला है। सो दिस इज द velocity of steam in the direction of blade motion at the inlet. This is again the velocity of steam in the direction of blade motion at the outlet. So this will become velocity of whirl at inlet and velocity of whirl at outlet. So इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, velocity of whirl at inlet, velocity of whirl at outlet, और gc is equal to will become 1 as it is the एक फैक्टर है। So नाउ वेलोसिटी F, फोर्स हम लोगों ने निकाल लिया। सो जैसे ही हमने फोर्स निकाला है तो हम लोग निकाल सकते हैं वर्क। देखिए सारे जगह जीसी दिख रहा होगा, तो जीसी क्या है, सिंपली एक कन्वर्जन फैक्टर है। तो अगर एसआई में अगर यूनिट में हम सारा चीज डिस्कस करेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। सो ये जीसी एलिमिनेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो हम लोगों ने फोर्स लगा दिए, कितना स्टीम के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ द वर्क डन अगर हम निकालना चाहते हैं, देन दिस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड। तो मोशन ऑफ द ब्लेड अगर यूनिट टाइम की बात करते हैं तो कितना होगा, vb के बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ इन यूनिट टाइम, दैट्स व्हाई इट इज रेट, यहाँ पे डॉट दिख रहा है, ये रेट हो गया, इनटू ये कंपोनेंट हो गया। सो दिस एक्सप्रेशन इज शोइंग द रेट ऑफ द वर्क डन बाय द स्टीम ऑन ब्लेड। सो इफिशियंसी भी हम लोग निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी द इफिशियंसी, द इफिशियंसी विल बी द वर्क डन डिवाइडेड बाय द इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितना था, हाफ, काइनेटिक एनर्जी था हाफ m मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम इनटू vs का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। सो इसमें जैसे ही वो हम इस कंपोनेंट से हम लोग मल्टी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक इफिशियंसी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इफिशियंसी। सो अब हम ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि ऑप्टिमम ब्लेड वेलोसिटी कितना होगा। ऑप्टिमम ब्लेड वेलोसिटी मतलब क्या, देखिए एज अ सिमिलर एनालिसिस, ये vb ब्लेड वेलोसिटी, जैसे जैसे ब्लेड वेलोसिटी चेंज होगा, देखिए vs1 इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन द इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ब्लेड। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लेड का कौन सा कंपोनेंट, कौन सा वैल्यू रखेंगे। वेलोसिटी ऑफ ब्लेड हो सकता है जीरो से लेके, जैसे हमने पिछला किया था कि vs तक हो सकता है। देयरफॉर कौन सा वेलोसिटी ऑफ ब्लेड के कॉरस्पॉन्डिंग वर्क डन मैक्सिमम होगा, तो हम इस
वर्क डन के एक्सप्रेशन को हम वेलोसिटी ऑफ ब्लेड के साथ डिफरेंशिएट करके 0 कर देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ब्लेड आ जाएगा। तो इसको करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। जैसे ये VS1 cos थीटा है और VS2 cos थीटा को हम लोग VS2 cos डेल्टा को हम लोग VV के टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो VS2 cos डेल्टा अगर हम लिखना चाहते हैं, VS2 ये जो कंपोनेंट है, चलिए मिडिल वाला में देखा जाए तो ज्यादा क्लियर होगा। This is the VS2 not VR2. See in the diagram in the literature book it is wrongly printed, so this should be the VS2 not VR2. Please keep in mind. So this is the VS2, this is VS2. So in the horizontal direction let us take the component. So in this direction let us perpendicular, so this component will become VS2 cos delta, which will be equal to VV minus VR2 cos gamma, VR2 cos gamma, VR2 cos gamma. That means क्या हो गया, VS2 is VB minus VR2 cos gamma। और अगर ब्लेड पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो, कोई भी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो, उस केसेस में VR2 cos gamma will become VR1 cos phi, VR1 cos phi। सो ये जो VR2 cos gamma है उसके जगह हम लोगों ने इनलेट रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में कर दिया गया। और इनलेट रिलेटिव वेलोसिटी को हम कितना लिख सकते हैं, VS1 cos थीटा माइनस VV। मतलब क्या हो गया, VS2 cos डेल्टा किसके टर्म में आ गया, VS1 के टर्म में, थीटा के टर्म में और VV के टर्म में। सो फाइनली जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। मतलब ये VS2 cos डेल्टा इज गेट रिप्लेस्ड बाय VS cos theta and VV, and the final expression we will get like this one. So अगर हम इसको differentiate करते हैं with respect to VV, then we will get an expression of VV which will give the maximum value of work done. That's why it is called as velocity of blade, optimum velocity of blade. And the expression we will get as a half VS1 cos theta, half VS1 cos theta, half VS1 cos theta। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वर्क डन का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। दैट इज नथिंग बट 2 टाइम्स मास फ्लो रेट VV ऑप्टिमम स्क्वायर। और अगर हम इफिशिएंसी का फार्मूला में, इफिशिएंसी के फार्मूला में हम इस वेलोसिटी, ऑप्टिमम वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन मिलता है cos theta का स्क्वायर। सो in this cases the maximum blade velocity will be cos theta square and maximum work done expression will be this. So in this way I hope you have understood the velocity diagram, the velocity diagram. Also what we have learned, we have understand the velocity diagram. Also we understood under what condition the blade velocity and the work done will be the maximum and efficiency will be the maximum. So when the blade optimum velocity we got like this one, in that case we got the corresponding to this optimum velocity we got the maximum work done. So ये जब मैक्सिमम ऑप्टिमम ब्लेड वेलोसिटी के कारण क्या मिल रहा है, मैक्सिमम वर्क डन मिल रहा है। और एक और रिजल्टेंट मिल जाता है जब आप डेल्टा का वैल्यू निकालना चाहेंगे, डेल्टा का वैल्यू निकालना चाहेंगे वो क्या आता है, कब, जब हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ब्लेड क्या हो, ऑप्टिमम हो। अभी हमने वेलोसिटी ऑफ ब्लेड, ये हमने VS2 cos डेल्टा, ये जो VS2 cos डेल्टा था, VS2 cos डेल्टा, उसका हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था VS1 थीटा और VB के टर्म में, वो आ जाएगा 2 टाइम्स VB माइनस VS1 cos थीटा। अगर आप इसको इसमें एक्सप्रेशन में आप VB करेंगे तो वो जो एक्सप्रेशन आएगा VS2 अगर हम
ये जो VS2 था, ये VS2 cos डेल्टा लेंगे तो वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ VB इंटू VS1 cos थीटा, ट्वाइस ऑफ VB VS1 cos थीटा। अब अगर VB ये ऑप्टिमम हो जाता है तो हम अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या होगा, 2 टाइम्स VS1 cos थीटा अपॉन 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू V ऑप्टिमम वैल्यू। अगर VB की जगह ये V ऑप्टिमम हो जाता है तो जब ये V ऑप्टिमम अगर हम इसमें कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, VS1 cos थीटा माइनस VS1 cos थीटा। मतलब ये जो टर्मिनोलॉजी है वो कितने के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। मतलब cos डेल्टा कितना हो जाएगा, 0। तो डेल्टा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 90। मतलब हमारे पास एक रिजल्ट हमें मिल गया कि जब ऑप्टिमम वेलोसिटी है तो हमारे पास मैक्सिमम वर्क डन तो मिल रहा है, साथ ही साथ डेल्टा का वैल्यू कितना मिल रहा है, 90। यानी ये जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी ऑफ ब्लेड वो कुछ इस तरीके से एग्जिट होगा, VS2 इस तरीके से होगा, VS2 इस तरीके से एग्जिट होगा। सो ये क्या है, VS2 एक्चुअली है क्या, एग्जिट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एग्जिट एब्सोल्यूट वेलोसिटी। या हम ये कर सकते हैं इसका कंपोनेंट VB के डायरेक्शन में क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ व्हर्ल एट द एग्जिट। ये VS2 cos डेल्टा क्या है, वेलोसिटी ऑफ व्हर्ल एट द एग्जिट। वो कितना मिल गया मुझे, 0। अंडर व्हाट कंडीशन, अंडर द ऑप्टिमम ब्लेड वेलोसिटी कंडीशन। यानी हम ये कह सकते हैं या तो डेल्टा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है या वेलोसिटी ऑफ द व्हर्ल एट द एग्जिट इज इक्वल टू 0 when the under the optimum blade velocity or when the work done is maximum. So let us understand the same work done can be evaluated. Till now we have evaluated the work done by the use of impulse momentum principle. Now let us evaluate the expression of work done by the use of first law principles. So with first law of thermodynamics, first law principles. So with that, let us incorporate some assumptions. The first assumptions let us have, as usual, there is no change in potential energy. Also, since these all process have no heat transfer process, therefore there will not be any heat that is being losses. Also, when we can write the first principle with these two assumptions, that means by neglecting the heat transfer and the change in, by the no heat transfer and change in potential energy, the first law expression will converted like this. What will be this one? The work done we can write and simplify. See, H1 plus V1 square upon 2 plus Q plus Z1 is equal to क्या होगा, H2 plus VS2 square by 2 plus Z2 plus work done. So work done we can keep it one side, neglecting the change in potential energy and heat transfer terminology. We will get an expression like this one from steady flow energy equation. So this is the enthalpy drop and this is the change in kinetic energy for the steam. So enthalpy drop during the from the inlet to exit. So how, let us, अब वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, अगर मुझे एंथैल्पी ड्रॉप मिल जाए तो हम लोग उसे निकाल सकते हैं। ये क्या है एंथैल्पी ड्रॉप, द एंथैल्पी H1 क्या है, एंथैल्पी ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग द ब्लेड। H2 क्या है, एंथैल्पी ऑफ द ड्रॉप that is coming out of the blade or leaving the blade. So H1 और H2 हम लोग निकालेंगे by considering the fluid flow relative to the blade. कब हम इसको क्या मान लेंगे कि जब ऑब्जर्वर ब्लेड पे बैठा हुआ है, जब ऑब्जर्वर ब्लेड पे बैठा हुआ है उस केसेस में जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा देंगे।
उस केसेस में जब ऑब्जर्वर ब्लेड पे बैठा रहेगा तो जो वेलोसिटी एट द इनलेट होगा ऐसे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में, वो रिलेटिव वेलोसिटी होगा और ये भी रिलेटिव वेलोसिटी होगा। चूंकि ऑब्जर्वर अगर बैठा हुआ है ब्लेड पे, इसका मतलब ये है कि ब्लेड इज स्टेशनरी, इन दैट केस वर्क डन विल आल्सो बी जीरो। अगेन चूंकि कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो वो भी जीरो है। हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब नेग्लेक्ट किया है तो हमारा जो एक्सप्रेशन स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, सेम चीज हम एनालाइज कर रहे हैं, तो वो क्या मिल गया, VR2 VR2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस VR1 स्क्वायर अपॉन 2। ये हमने निकाल लिया कब, जब हमने सेम को एनालिसिस सिर्फ रेफरेंस चेंज कर दिया, जब ब्लेड ऑब्जर्वर ब्लेड पे बैठा हुआ। ये कब है, जब ऑब्जर्वर ब्लेड पे नहीं बैठा हुआ। देयरफॉर ये जो H1 हमने यहाँ पे लगाया है, इसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग इस एक्सप्रेशन से। देयरफॉर फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया, W डॉट दैट इज द मास फ्लो रेट इनटू चेंज इन वेलोसिटी, कौन सा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द स्टीम एंड चेंज इन रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों का डिफरेंस भी एट द इनलेट से आउटलेट के बीच का और इनलेट से आउटलेट के बीच में, यहाँ पे ये निगेटिव है। सो ये W जो रेट ऑफ वर्क डन मिल रहा है वो किसी भी टाइप का ब्लेड हो, इसमें अगर फ्रिक्शन भी हो रहा है, एक्सपेंशन भी हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, तब भी हम लोग इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। Therefore we can say that this is the general kind of equation to evaluate the work done for any blade which is having some friction, the expansion and contraction of the fluid हो सकता है during जब fluid पास कर रहा हो blade के through। Therefore this is the general expansion। अब क्या हो रहा है, अब हम अगर मान लीजिए हम निकालना चाह रहे हैं कि प्योर इंपल्स, अगर हम एक निकालना चाहते हैं प्योर इंपल्स के केसेस में, अगर ब्लेड क्या है, प्योर इंपल्स ब्लेड है, तो उस केसेस में रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा VR1 इज इक्वल टू VR2। ये इंपल्स, प्योर इंपल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। द VR2 विल बी इक्वल टू VR1। मतलब क्या हो रहा है कि दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। मतलब क्या हो गया, H1 will become H2। In that cases, this expression will get reduced into this expression. So this is the expression for the pure impulse. Now, how you can get this VS1 and this VS2? The answer is ये मिलेगा मुझे नोजल इक्वेशन से। नोजल इक्वेशन से क्यों, क्योंकि ये तो नोजल से जो बाहर आ रहा है वेलोसिटी वही हमें दे रहा है वेलोसिटी ऑफ स्टीम, तो ये हमें नोजल इक्वेशन से हम लोग वेलोसिटी ऑफ स्टीम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक इंपल्स अगर हम मान लीजिए कहते हैं कि एक इंपल्स ब्लेड है, अगर उसमें फ्रिक्शन है, रिमेंबर VR2 VR1 किसके कारण हो गया, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन नहीं है उसके लिए। लेकिन अगर मान लिया जाए इसमें फ्रिक्शन है, इंपल्स ब्लेड विथ फ्रिक्शन की अगर हम बात करेंगे, तो उस केसेस में क्या फर्क आ जाएगा एनालिसिस में। जैसे ही इंपल्स फ्रिक्शन आएगा तो ड्यूरिंग पैसेज द फ्लूइड पैसेज थ्रू द ब्लेड, जैसे फ्लूइड पास करेगा ब्लेड से, उसका रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। और वो दोनों जो रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होगा आउटलेट का और इनलेट का, रिलेटिव वेलोसिटी आउटलेट पे कम हो जाता है इनलेट से। क्यों, क्योंकि कुछ जो उसके पास एनर्जी है वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में लॉस्ट हो जाता है। देयरफॉर ये जो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगा। और एक टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है वेलोसिटी कोएफिशिएंट, जो कि इन दोनों वेलोसिटी को कोरिलेट करता है। इसका वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा। अब एक और टर्मिनोलॉजी आता है स्टेज इफिशियंसी। स्टेज इफिशियंसी, स्टेज इफिशियंसी,
स्टेज का मतलब क्या होता है? वन नोजल प्लस वन मूविंग ब्लेड इज कॉल्ड एज वन स्टेज। लेटर स्टेज में आप आगे भी जब डिस्कस करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से आप समझ जाएंगे। मतलब एक नोजल प्लस एक मूविंग ब्लेड, इसको बोला जाता है एक स्टेज। तो अगर हम उसका इफिशियंसी निकालना चाहते हैं, उसका डिनोट किया जाता है डेल्टा एच इफिशियंसी, इटा डेल्टा एच। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेज इफिशियंसी। ये इसका डिफाइन किया जाता है कि ये रेशियो है वर्क ऑफ द ब्लेड, जो ब्लेड पे जो काम किया जा रहा है, प्लस कितना एंथैल्पी डिवाइडेड बाय कितना एंथैल्पी पूरे स्टेज में ड्रॉप हुआ है। मतलब स्टीम का कितना एंथैल्पी पूरे स्टेज में ड्रॉप हुआ, एक स्टेज में कितना एंथैल्पी ड्रॉप हुआ, और उस एंथैल्पी का कितना परसेंट वर्क में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब यही है, यानी उस स्टेज वर्क डिवाइडेड बाय द स्टेज एंथैल्पी ड्रॉप। और अगर ये एडियाबेटिक होगा तो हमें यहाँ पे एस लगा देंगे, दैट इज स्टैंड्स फॉर एडियाबेटिक। तो ये टोटल एनर्जी है। अगर मास फ्लो रेट के टर्म में कहेंगे तो स्पेसिफिक एंथैल्पी के रूप में आ जाएगा। So you should not be worried about these all formula। जब हम न्यूमेरिकल में जाएंगे तो ये सब सारा फॉर्मूला आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा। आपको किसी को याद रखने के लिए जरूरत नहीं है, बस आप समझ जाइए कि कौन सा स्टेप हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सो इन दिस वे वी हैव अंडरस्टूड द वेलोसिटी ट्रायंगल, और उसमें हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हम लोग वर्क निकाल सकते हैं, इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। सो और डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, डिफरेंट नोमेनक्लेचर, हम उसके फेमिलियर हो गए वेलोसिटी डायग्राम में और एक्सटेंडेड डायग्राम में। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू वेरी मच।